Jai Hind friend. Today my topic is Science Chapter 4 Acid, Bases and Salt. Acids, bases and salts. आज इसके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को पहले देख लेते हैं. Fill in the blanks. Acids which are present in plant and animals are called organic acid. Bases bitter and bases taste bitter and have a soapy feel. Bases taste bitter and have a soapy feel. Acids turn the color of blue litmus paper to red. एसिड जो है टर्न कर देता है कलर के ब्लू लिटमस पेपर को यदि हम एसिड में डालें तो वो रेड हो जाता है. द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर डैश एंड डैश. तो सॉल्ट एंड वाटर. Salt of nitric acid HNO3 are named as dash. HNO3 को और कहा जाता है क्या? नाइट्रेट. क्या कह सकते हैं? नाइट्रेट. सोडियम एसिटेट CH3COONA is a basic salt formed by the reaction of dash. So CH3COOH and NaOH. NaOH is a strong base. NaOH and this is a weak acid. Okay. नेक्स्ट यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है. लेमन जूसेस साइट्रिक एसिड होता है इसमें, और टेमरिंड में जो है आपका टार्टरिक एसिड, वेनेगर एसिटिक एसिड, रेड एंड फॉर्मिक एसिड, सोर मिल्क लैक्टिक एसिड, गुआवा ऑक्सैलिक एसिड. बेसेस हैव अ डैश. तो बिटर टेस्ट एंड अ सोपी फील. बेसिस कैसा होता है? तो टेस्ट में कड़वा होता है और सोपी फील होता है वो. एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल इंडिकेटर इज डैश. तो लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर. An acid that contributes to the sour taste of some fruits is citric acid. Which of the following is a strong acid? तो nitric acid. Strong acid कौन सा है? तो nitric acid is a strong acid. Substances produced through a chemical reaction between acid and bases are known as salt. An indicator that turns red in a basic mediums is turmeric. The general taste of acids and base is respectively sour and bitter. And next question है, answer the following questions in brief. What are mineral acid? So इसके क्वेश्चन को देख लेंगे अब. ये हमारा चैप्टर 4 का ब्रीफली क्वेश्चन आंसर है. What are mineral acids? Acids which are prepared from minerals are called mineral acid. Okay, acid which are prepared from minerals are called mineral acid. जो एसिड मिनरल से तैयार हो उसे मिनरल्स एसिड कहते हैं. Give two example each of minerals acid and organic acid. Mineral acid, sulfuric acid and nitric acid. Organic acid के example में citric acid and acetic acid. Name any two substances that can be used as indicators. के रूप में हम लोग किस चीजों को यूज कर सकते हैं? तो लिटमस पेपर एंड टर्मेरिक. लिटमस पेपर को और टर्मेरिक दैट मीन्स हल्दी, इसे भी हम लोग इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. राइट द मीनिंग ऑफ द टर्म न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या समझते हैं? A reaction in which acid react with base to form salt and water is called neutralization reaction. Question number 5. Give any two properties of salt. Two properties of salt. Salt के क्या क्या properties हैं, गुण हैं? तो salt are formed after the neutralization reaction. Salt are bad conductors of electricity in their solid state but conduct electricity in water. Next है, classify the following salt as neutral, acidic or basic. Also write their names. Na3POH ये कैसा है? तो ये जो है सोडियम फॉस्फेट न्यूट्रल सॉल्ट है. सोडियम फॉस्फेट एंड न्यूट्रल सॉल्ट.
K2CO3, तो पोटेशियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट एसिडिक सॉल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हमारा यहाँ से ई नंबर का क्वेश्चन का फर्स्ट, ऑल अल्काइल्स आर बेस बट ऑल bases are not alkyls, justify this statement। all alkyls are base, सारा जितना भी alkyls है वो base है, but all bases are not alkyl, but जितना भी bases है वो alkyls नहीं है, justify this statement। okay, alkyls are the base which dissolve in water, but all bases cannot dissolve in water, hence all alkyls are base, but all bases are not alkyls। for example, sodium hydroxide is a base, sodium hydroxide is a base soluble in water and term as an alkyl, will while aluminium hydroxide is insoluble in water and term as a base, not as an alkyl। question number 2, suggest an activity that can help one to decide whether a given solution is acidic or base in nature। take a solution and a litmus paper, dip the litmus paper in the solution। okay, if the color of the litmus paper changes to red, then the solution is acidic, and when the color changes to blue, then the solution is base। एक लिटमस पेपर को लेते हैं, यदि उसे रेड उसका यदि कलर हो जाए तो उसे पता चलता है कि वो एसिडिक नेचर का है सॉल्यूशन, और यदि वो उसका कलर ब्लू हो जाता है तो उससे पता चलता है कि वो बेसिक नेचर का सॉल्यूशन है। ओके, सेकेंड नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो CaOH2 + 2HNO3 एंड CaNO3 + 2H2O 2H2O। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, एसिडिक एसिड रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एसिडिक एसिड रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो 2CH3 COOH + CaOH2, इससे प्रोडक्ट हमारा रिलीज हो रहा है CaCH3 COO2 + 2H2O + 2H2O। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो HCl + NaOH, इससे मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है NaCl + H2O, NaCl + H2O। एंड नेक्स्ट डी नंबर क्वेश्चन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट द विथ सल्फर एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, 2NaOH + H2SO4 NH4 2SO4 + 2H2O। इसे बैलेंस इक्वेशन करके इसे समझा जा सकता है, इसका बैलेंसिंग सीखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल, acidic and basic salt, give one example of each। neutral salt, what is neutral salt? So salt formed by reaction of a strong acid with a strong base, example sodium chloride NaCl, and acidic salt, salt formed by the reactions of a strong acid and a weak base, example aluminium chloride AlCl3, बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक सॉल्ट को लेते हैं, बेसिक सॉल्ट में क्या है, तो सॉल्ट formed by the reaction of a weak acid and a strong base, example sodium acetate CH3 COONA, ये हो गया बेसिक सॉल्ट का आपका डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। Describe an activity to show that solution of salt in water can conduct electricity। Okay. Describe an activity to show that solution of salt in water can conduct electricity। Take a beaker and fill it half। एक
कर लेंगे, उसे हाफ फिल करेंगे विथ वाटर से, डिजोल्व सम कॉमन सॉल्ट, जो हमारा घर का सॉल्ट होता है नमक, उसमें थोड़ा नमक का यूज करेंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl जिसे कहते हैं या टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। इन दिस वाटर कनेक्ट 2 ग्रेफाइट रॉड्स, 2 ग्रेफाइट रॉड लेंगे विथ द 2 टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी, 2 टर्मिनल से उसको बैटरी के लगा देंगे विथ अ 0 वाट LED बल्ब, 0 वाट का एक LED बल्ब ले लेंगे इन बिटवीन एज सोन इन द फिगर। नाउ डिप these graphite rods in the solution of sodium chloride, the bulb starts glowing, bulb जो है जलना स्टार्ट कर देगा, indicating the flow of electric, इससे इंडिकेट हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो उसमें हो रहा है। This shows that a solution of sodium chloride can conduct electricity, that a solution of sodium chloride can conduct electricity. Okay, इस फिगर में क्लियरली से देखा जा सकता है, दिस इज द बीकर ऑफ वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये एक बीकर है एंड 2 ग्रेफाइट का रड लेके इसमें पॉजिटिव, ये इधर से ये पॉजिटिव है और दिस चार्ज इज द नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज अ बैटरी। सो ये हमारा बल्ब हो गया, ग्लोइंग बल्ब। दिस फिगर इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया ऑल चैप्टर 4 का, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का। अब इसमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप लोग जरूर ही इसे पढ़िए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ऑल फ्रूट्स, किसमें कौन सा फ्रूट्स में जो है एसिड पाया जाता है, ये चीज़ यहाँ पे दिया है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज चैप्टर 4। सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दिस, ये किसी भी स्कूल में कोई भी एग्जाम में जरूर ही आता है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेमिंग ऑफ सॉल्ट। दिस इज अ सॉल्ट ऑफ सल्फर एसिड, ये सल्फेट, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हियर कीवर्ड, ऑल चैप्टर का कीवर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसे पढ़ के हम शॉर्ट में क्वेश्चन आंसर को फिल कर सकते हैं। और ये यू मस्ट नो, चैप्टर 4 का जो भी इम्पोर्टेंट बात होता है वो यू मस्ट नो में मुख्य रूप से दिया होता है, जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट बात है वो इसमें दिया हुआ है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।